May I request Mr. Divyaditya Kothari, Director, Renaissance University, to join us on the stage, please. So the stage is all yours, Mr. Prashant. Mike's on there. Everyone, looking forward for an enlightening discussion. We'll be taking this discussion ahead in terms of various aspects of career, and we'll try going beyond it. Before that, congratulations to Yuva and the entire team for organizing this and taking this initiative, which is Bloom. I hope it continues and it benefits more and more young minds. And I feel fantastic, privileged that I am sitting along such a luminary panel. All these gentlemen have contributed to breadth and length of education, have shaped tons of minds, and I think along with me, we all will be very excited to have their words of wisdom. We'll have few questions. Later on, we'll have questions from all the esteemed guests also. And let's try to understand what they have to say. There are some common questions we would like to bring up on the bench and take their opinions on them. So, shall we get started? Can I have a yes? I can't hear you guys. Thank you, thank you. So, we will begin with Jason sir. I think let's have a start of the discussion which should be full of adrenaline and thrill. And I think Jason sir might have understood why I'm talking about that. He comes from military background. And of course, before I take it further, thank you for your service. Thank you so much, Prashant. So, I am Captain Jason Thomas, and as our topic is decision making, especially in career, I personally believe this is one of the very important aspect of an individual, and we as educators, we as trainers, teachers, we need to guide them in such a way, like what I do with my kids, with my students is I allow them, I give them a environment where they can take small decisions. Our biggest challenge is we don't allow them to take small decisions and then we ask them to take a big decision. So this is a skill which you need to develop gradually. You can't say that मैं 7th में आ जाऊँगा, 8th में आ जाऊँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा. Like छोटे डिसीजन, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं. हमारे देश में जैसे मैं इंटरव्यूज जब लेता हूं, मैं देखता हूं कि अगर किसी मैं लड़के से पूछता हूं कि तुम ये कर लोगे क्या, ये जो चीजें होगी तुम कर लोगे, उसके पास वो स्किल सेट हो या ना हो, उसके जवाब होता है यस सर, हो जाएगा, कर लूंगा मैं, आप बस मुझे नौकरी दे दो, मैं सब कर लूंगा. वहीं अगर आप किसी लड़की से पूछो ना, थोड़ी सी बोल देती है हाँ सर मैं कोशिश कर लूंगी. इसके पीछे का अगर रीजन आप देखो, हम लड़कों को ये अलाउ किया जाता है कि बचपन से बाहर जाओ, आप पान की गुमटी में खड़े हो सकते हो, आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, छोटी छोटी डिसीजन लेते हो, तो वो एक हैबिट में आ गया उनके. सो वी एज एजुकेटर्स, पेरेंट्स, वी नीड टू गाइड आवर स्टूडेंट्स, गाइड आवर किड्स, स्पेशली फॉर टेकिंग सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, उसको एक चॉकलेट लेना है, allow them to take a decision which chocolate you want. So Allahu Akbar. Just kidding. So the concept is that we need to guide them, we need to train them from initial stage. एक से छोटा सा सवाल है. Of course, you've been an extraordinary educationist, personality development trainer, a communication coach. You have done it all. आपके मिलिट्री बैकग्राउंड से अगर मैं पूछूं तो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या होना चाहिए, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, जो आपको लगता है कि व्हेन यू स्पेंड योर टाइम इन द सर्विस, उसका क्या एस्पेक्ट एजुकेशन में होना चाहिए, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज फौज में जो ट्रेनिंग होती है वो 2 से 3 साल तक की ट्रेनिंग होती है, राइट? अब आप 3 साल में एक ऐसे इंडिविजुअल, मैंने ना अपने साथ में बड़े बड़े गुंडों को एक जेंटलमैन बनते हुए देखा है, जो अपने टाइम पे अपने स्कूल कॉलेज में वो 1 नंबर के छठे हुए बदमाश थे, वो 3 साल के अंदर एक जेंटलमैन बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी वो सारी स्किल्स जो बाहर नेगेटिव बताया जाता था उसको एक रास्ता देते हैं. सो वी एज एन एजुकेटर्स वी नीड टू गिव देम, दे आर फुल ऑफ फायर, राइट? आग अगर काबू में ना हो ना तो आपको जला देगी, अगर वो काबू में आ जाए तो आपके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी. तो उसको काबू में रखने के लिए हमको उनको एक पाथ देना. दैट इज व्हाट आई हैव गेन इन आर्मी.
फौज में वो जो नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, वो मैंने अपने अंदर भर लिया है. आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक, मैं अतुल सर, हम लोग जब बात करते हैं हमने देखा है कि हमारे बचपन के सपने बहुत बड़े थे, सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे. आजकल के बच्चों के अंदर सपने नहीं है, इंफॉर्मेशन है. दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो नॉलेज. उसको आप उससे पूछ लो मार्क जकरबर्ग की लाइफ स्टोरी, यूं बता देगा. आप उससे पूछ लो कोई भी XYZ पर्सनालिटी की लाइफ स्टोरी पूछो, रतन टाटा ना, बड़े बड़े लोगों की लाइफ स्टोरी पता है, बट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड वो नहीं पता है उनको, कहां से शुरू किया, कैसे शुरू किया. तो कहने का मतलब फौज में हमने एक ही चीज सीखा है, दैट हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू टर्न योर पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस. दैट इज द बिगेस्ट थिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम आर्मी. Thank you, sir. Wonderful inputs. And I think there are a lot of elements of forge service where bits and pieces can be inculcated in our education system. True, true. Especially in my teachers training program, I asked my teachers that, you know, a teacher at least, she or he must know at least 10 life skill stories. Correct. At least. That's what And we unfortunately, I find in big schools also, teachers are very much focused into their syllabus. ठीक है, like even I take sessions in colleges, but मैं उस सब्जेक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश करता हूँ. एंड आप अगर मुझसे सवाल कर रहे हो फौज के हिसाब से, फौज में आज भी जो ट्रेनिंग चलती है वो ब्रिटिशर्स के जमाने के हिसाब से ट्रेनिंग चलती है. आज भी फौज में जो ऑफिसर्स है वो एक इंग्लिश मैन के कैटेगरी में आता है, और जो सोल्जर्स है वो इंडियंस के कैटेगरी में आता है. अनफॉर्चुनेटली इट इज देयर, राइट, बट दैट इज द सिस्टम, दैट इज द डिसिप्लिन, राइट. तो हमको उसी चीज को, मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं उस चीज को बहुत डाइल्यूट करके, राइट, एजुकेशन में डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन के नाम पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है. आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में लाओगे, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है. Great. Thank you so much. I'll move on to my next esteemed panelist, Professor Biswas, Vice Chancellor, Jagran University. I think सर ने बहुत सारी esteemed university की स्थापना की, उनको आगे बढ़ाया, and he is a luminary in the field of management education. And thank you, sir, for right away such a short notice coming from Bhopal. I think मेरा सवाल आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होगा. Being an academic, I think you're the best person to answer. As an academic, you are in the know-how of what is new education policy and where it is heading. But I think for layman, for हम आम जनता के लिए वो बिल्कुल हम जानना चाहते हैं, what is this policy, how it is going to benefit of students, and what they should know about it so that they can take more informed decisions about their careers. Thank you, Prashant. I think I am the odd man present here because I am away from the school education since 1972. It's quite some time. Last 40 years I have spent time mostly with the higher education institutions. But I think what you are talking, career decision making, that stands true whether it is school, whether it is college, whether it is higher education, it stands that way. How do you make your career decision? And specifically when you are talking about national education policy, what is important is that, you know, what you are talking about national education policy today, I think India practiced such kind of education long time back. If you go back to the history of education, so I'll talk in the space of higher education, Nalanda University or Takshila and all that. You see, we are talking about holistic education, for example. We are talking about interdisciplinary education. In the NEP focuses on all these things. Also, NEP focuses on the having roots in your own culture. That is also is one other important aspect of learning. What is important is that we are making children, which irrespective of the level, school or college, we are not making them interact or discuss or debate. No, that kind of thing. It is a kind of most of the places, if you look at early school education, we are making them one-way communication. We are not encouraging them to speak. As you said, ना, opportunity देना चाहिए, potential सब में है, but are you harnessing those potential or not? That is a big question mark. ना, are you? Because sometimes teachers, I think what is important is that teachers training or college teachers teaching or university teachers training is extremely important because they need to tap the potential of the students. They need to understand. They also have a point of view. As you said, these days students are, as you also said, full of information. They are glued to the mobile phone. In a second they can find out what is happening in the US, what is happening in Russia, what is happening elsewhere as far as any particular topic you say.
But as you said, knowledge part is important, and that is where we have to focus. And interdisciplinary, say for example, I studied in JNU long time back in 1976. You know, if a chemistry honors graduate could do a master's in economics, which was blasphemy in other universities those days. Okay, but we did encourage that kind of interdisciplinary studying and all that. What it gives now, worldwide, we are talking about in management that infusion of liberal arts and science is important in management education, because you need to understand people, because your business or corporate world does not work in a void. They need people, and they work with the people. That's why C.K. Prahalad said, the fortune lies at the bottom of the pyramid. No, you need to understand the market. You need to understand the market. And in fact, if you go out of this room, the exhibition which are there, education is a big market. You have a lot of opportunity, lot of things are being available to support and facilitate the school education or the university education or the college education. But at the root of all these problems, I think there are two things are very, very important. Life skills. Life skills. We have ignored. If you look at Gurukul, for example, it was full of life skills. People were being given training, they were trained and they were asked to learn a lot of things. Because today's child will be miserably failed, to cope up certain kind of emergency or situation kind of thing. So life skills are important. Second, soft skills. Substance. Soft skills. Soft skills. Communication Soft is skills. at the core of the heart. And now if you look at the, say, students who are, they have a lot of influence, they are confused guy. What kind of career they would opt for it. Certain kind of counseling is required, certain kind of guidance is required. See, teachers need not teach only. I would expect teachers to be the mentors. You need to mentor the students. You need to guide them in their, not only what you teach is a subject, as science you teach, that is not enough. I think we should be mentoring them on what is the application of science and where you can do and what. That's more important. Application of knowledge is more important than acquiring theoretical knowledge inside the classroom. And that is what we have done so far. And that is where the change is required. And that is what NEP is trying to focus. All right. Application-based learning. And secondly, when you are they need to be focused. I have seen many times when the placement season comes, there is every college, every university, like I have another friend of who is from university. So people do not know even how to make a resume, how to make a biodata, how to make a CV, and how to communicate, how to face the person in front of you. They are very good at otherwise conversation. But when they face a person inside who is interviewing them, they miserably fail. Communication is very poor. And what has happened, WhatsApp University and Google Guru, they have forgotten the art of writing or the presenting or the communicating the way they should be communicating. The English is so spoiled, or even Hindi or whatever language you want to say. I think that is where is the challenge. We have forgotten the fundamentals. We are focusing on the other aspects. And we have to focus on those things. Life skills, soft skills and the fundamentals. That is very, very important. And national education can be fulfilled if we see that holistic education is complete by doing all these things and encourage students to speak more and more inside the classroom. Sometimes I have seen teachers in university, I have seen making a comment, लड़का ज़्यादा जानता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं PhD हूँ, मैं बहुत जानता हूँ स्टूडेंट से, वो क्यों मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है? True. This is a kind of attitude I think we have to get over. You never know, with the kind of access they have to the information, they can stand up in the class, sir, you are quoting all outdated data. It's quite possible. So give a chance to speak to the students, You are one person and inside there are 60 resources. You should use the students as your resources for learning. But we don't use that. Sir, I would like to add one more point with this. Like he said that Google and all this the social media, they are getting information. Unfortunately, the students even doesn't know how to use that, right? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कॉलेज में एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट दिया, राइट? उस प्रोजेक्ट को उसने करके लेके आया, परफेक्ट प्रोजेक्ट, और साफ दिख रहा है चैट जीपीटी से उसने निकाला है, आर्टिफिशियल है ना? बट उसने उसकी बेवकूफी आप देखो, उसने शुरू कैसे किया? Certainly I can help you out, right? I can help you with this project and this are the information. At last में लिखा है, hopefully this information is like suitable for you, ऐसा कुछ लिखा, साफ दिख रहा है कि इसने कॉपी पेस्ट किया है. मैंने उसको बोला बॉस अच्छा है, राइट? इसको तुम पढ़ लेते, 2, 4, 5 बार पढ़ते, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते. Like even my daughter also, she used ChatGPT. मैं उसको बोलता हूँ तुम उसको use, अब we can't stop them, right?
this is available. But we as he said, we as a mentors, trainers, हमको भी ट्रेनिंग लेना है उसको, और लेने के बाद उनको बताना ये चीज कि इसको यूज कैसे करना. प्रॉब्लम क्या हो रही है, कई कॉलेजेस ने, कई स्कूल्स ने स्पेशली चैट जीपीटी को बैन कर रखा है, और जिस चीज को आप बैन करोगे उस चीज का आप मतलब इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली उसका डिमांड बढ़ा रहे हो, राइट? तो इसके स्पेसिफिकली यंग माइंड्स, रिबेल एटीट्यूड. एग्जैक्टली, इसके बजाय हम लोगों को उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए. इतने सारे हाउ टू यूज इट, फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही है, मैंने खुद ने लिया, तो ताकि हम उनको गाइड कर पाए, बेटा इसको यूज कैसे करना है. सो दैट्स वेरी ट्रू व्हाट ही इज सेइंग. Yes, yes. I think he's correct because teachers have to be smarter than the students because he knows that students have more access now. And therefore, one has to be updated and a new kind of whatever is available in a particular field. And these days, unlike the previous years, ample number of opportunities are available. Right. But then, the teachers also should be aware of that. Unfortunately, that is not the case. A teacher typically, if I am teaching a marketing, beyond marketing, I don't know anything. What happens in finance or what happens in HR, I don't know. But learning is always integrated. It's not one time or one focused, one kind of thing. This is where is a challenge. And in concise, because you're the most experienced, हम सबको थोड़ा सा आप बताइए कि आपने पिछले 3 डिकेड्स में गुरु शिष्य रिश्ते में क्या बदलाव होते हुए देखे हैं, और हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं. As a teacher for last 40 years, what I have practiced is that beyond see, we typically say that in management education. Again, I am speaking in the context of management education, but I think also applicable elsewhere. Classroom teaching, you learn 30%, 30 to 40%. Actually, outside the classroom, you learn a lot. Only 30 to 40%. You learn a lot. And like in the morning, somebody was speaking about the play group for the children and all that. I think playing, sports, music, they are not deterrents. They are in fact supplementary to your developing a healthy cognitive Very mind. important supplements. That's very important. And beyond my classroom, I should not stop. I should be encouraging because luckily all my life I have been in residential institutions. IFM is fully residential. So what happens, students can have easy access to you and you should again address their challenges. Challenges do not occur only within that 60 minutes of the class or 1.5 hours of the class. It goes beyond that. It goes beyond that. And somewhere you have to also encourage them to refer to the right kind of journals, right kind of books, right kind of things. And that is why I'll say teacher's role is significantly much more than what we typically see a teaching inside the classroom. And It's not about the classroom only. Yeah. Great. Wonderful. Mentoring is important. Mentoring is very, very important. So teaching is one super important word, but the biggest of all is mentoring. Moving on to Atul sir. I've had the privilege of knowing him more than a decade. Sir ने student domain में, college education में entrepreneurship के ecosystem को transform किया है. He has led the initiative, let me tell all of you, right? तो आज बहुत अच्छा लगता है कि 5-7 साल 8 साल पहले क्या बनना है, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, बट धीरे धीरे जो वो पैनोरामा बढ़ा तो आज बच्चे बोलते हैं भले ही वो 8th में है 9th में है with all the shark tanks and everything, और जो सर ने काम किया कि एंटरप्रेन्योर बनना है. सो आई वुड आस्क अतुल सर कि एंटरप्रेन्योरशिप का आई एम नॉट श्योर वेदर वी आर ओवर एम्फसाइजिंग द टर्म और नॉट, बट अगर कोई बच्चा सोचता है 9 से 10 से उसको वो लगने लगता है कि बस ही हैज़ दैट फैसिनेशन, क्या स्टेप्स होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति और उसको वो कैसे कल्टिवेट करे उस वैल्यू को? थैंक यू प्रशांत. कैरियर डिसीजन की जहाँ पर बात आती है तो मैं इंडियन एजुकेशन का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ये है कि इंडियन एजुकेशन से ज़्यादा बड़ा डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स. ओके. हम अपने बच्चों को वाई पूछने का अधिकार ही नहीं देते. राइट सर. ना क्लासरूम में टीचर उसको वाई पूछने का अधिकार देता है, ना प्रोफेसर उसको वाई पूछने का अधिकार देता है, ना माँ बाप उसको वाई पूछने का अधिकार देते हैं. तो वो अपना ही वाई नहीं पूछता है. तो हम एक आइडेंटिटी को क्रश कर चुके होते हैं 18 साल में, और 18 साल में फिर 18 साल के बाद जब वो पढ़ाई करता है, और मुझे लगता है भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे डॉक्टर कलेक्टर बन जाता है. ट्रू. तो बच्चे को अपने आप को पहचानने की हम उसको कहीं जगह ही नहीं देते हैं. हम डू एज डायरेक्टेड और एक नौकरी पेशा और एक नौकरशाही के एनवायरनमेंट में पुश्तैनियों से बड़े आ रहे हैं,
और बढ़ते जा रहे हैं। हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम अच्छे बच्चों को पढ़ा लें, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी का हेड है। अगर आईटी में देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया की महाशक्ति है। महाशक्ति। अगर हम कंप्यूटर से आज अगर आप एडमिशन रोल्स पे देखो तो हर बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है। ट्रू। क्यों? क्योंकि उसके मालूम है कि मुझे बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अगर भारत सबसे बड़ी महाशक्ति है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर व्हाट्सएप हमने क्यों नहीं बनाया, फेसबुक हमने क्यों नहीं बनाया, इंस्टाग्राम हमने क्यों नहीं बनाया, स्नैपचैट हमने क्यों नहीं बनाया? आप कोई भी आईटी का प्रोडक्ट उठा के देख लो इस दुनिया में, वो भारत ने नहीं बनाया है। भारत के जो बच्चे हैं वो नौकरी करने के लिए तैयार किए जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं तैयार किए जाते हैं। हमको ये तोड़ना पड़ेगा। आज होने लगा है धीरे धीरे, पिछले 10 सालों पहले नहीं था, लेकिन जैसा तुमने कहा मैं पिछले 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में। अब जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 9th क्लास 10th क्लास, अभी मेरा फर्स्ट ईयर में एक बच्चा है, उसने 11th क्लास में अपनी एक कंपनी बना ली थी एआई की। वंडरफुल। वो एक एआई पे फूड चेन बना रहा है, अभिषेक अग्रवाल उसका नाम है जी। एंड ही इज़ वेरी क्लियर कि मैंने सिर्फ एडमिशन लिया है कि मेरे को इंजीनियरिंग खत्म करनी है, दैट्स ऑल, इट्स अ फॉर्मल डिग्री। एंड ऑफ द डे आई हैव ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसने एलएलपी फॉर्म कर ली है और वो 11th क्लास में ही फॉर्म कर ली थी। पेरेंट्स को वो माइंडसेट रखना पड़ेगा कि एक इंसान, भगवान ने जब किसी आत्मा को जन्म दिया है तो उसको एक यूएसपी के साथ जन्म देता है, उस यूएसपी को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो होता है पूरा स्कूल एजुकेशन में, और वो होता है पूरा हमारे उसकी अपब्रिंगिंग में। क्योंकि हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा खूब पढ़े, खूब अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाए। हम हमारे बच्चों को पैसे छापने की मशीन ना बना के इंसान बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश अपने आप राइट डायरेक्शन पे चला जाएगा। और सर पेरेंट्स का, आई थिंक दिस इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पेरेंट्स के अलावा स्कूल या कॉलेज इन जनरल इस वैल्यू को कल्टीवेट करने के लिए क्या कर सकता है? वो टीचर्स ट्रेनिंग का आएगा, स्टूडेंट ट्रेनिंग का नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो गूगल से पढ़ के आ रहा है क्लास में। स्टूडेंट तो अगर टीचर को सक्सेसफुल होना है तो टीचर को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आज से 15-20 साल पहले जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था बैंक्स में, उस टाइम की अगर सिनेरियो देखना, बैंक्स में जो काम 5 मिनट में हो जाता था 1-1 घंटा लगता था, क्योंकि वो टाइप करते थे ऐसे ऐसे करके, राइट, बिकॉज इवन दे आर नॉट ट्रेन्ड, राइट, बट अब ट्रेन लोग आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो एनईपी है आने वाले 5-10 साल में जाके वो चीज़ होगा जो सर एनईपी में सी इट डजंट मैटर विच सब्जेक्ट यू रीड। अभी तक ये था कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बने तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। अब मैं इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सिविक्स पढ़ के भी इंजीनियर बन सकता हूँ। एग्जैक्टली ट्रू। अब मैं आर्ट्स फाइन आर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के भी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। ये मेरा गट्स है। तो अब बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो सर ने बात करी, होलिस्टिक डेवलपमेंट और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट और लाइफ स्किल डेवलपमेंट, ये तीनों एनईपी में साथ में आएगा। क्योंकि अब जब वो सीयूईटी देगा तो उसको एप्टीट्यूड के 3 पेपर देने हैं, उसको डोमेन के 3 पेपर देने हैं और लैंग्वेज के भी 3 पेपर देने हैं। इट्स नॉट ओनली मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बी एन इंजीनियर, इट्स अबाउट एवरीथिंग टू नाउ टू बी एन इंजीनियर। एंड देयर वी आर मेकिंग रॉक सॉलिड प्रोफेशनल्स टू वर्क फॉर। प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर मैकेंजी की रिपोर्ट देखें हम पिछले 4-5 सालों की, तो वो ये कहता है कि भारत का जो बच्चा बीए पढ़ रहा है और भारत का बच्चा जो एमबीबीएस पढ़ रहा है, दोनों को आइडिएशन है ही नहीं। एग्जैक्टली आइडिएशन की कमी है। और आइडिएशन की कमी इसलिए क्योंकि हम अपने आप से नहीं पूछ रहे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हम बच्चे को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो ये क्यों कर रहा है। तो डू एज डायरेक्टेड जो सोसाइटी होती है, डू एज डायरेक्टेड सोसाइटी में हम नौकरी पेशा बच्चे ही बड़े करेंगे। हमको उसको डू एज डायरेक्टेड से तोड़ना पड़ेगा। हमको बच्चे को स्पेस देना पड़ेगा कि यू डिसाइड, वी विल एडवाइस यू, वी शुड नॉट डिसाइड। हम डिसीजन दे देते कि नहीं तुमको तो यही करना है, तुमको तो जेई देना है, तुमको इंजीनियर बनना है और कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है। इसलिए फिर वो डॉक्टर कलेक्टर बन जाता है, फिर वो इंजीनियर जाके रेस्टोरेंट खोल लेता है। सही बात। उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो पैशन है, उसका जो मेटल है, उसका जो गट है, उसका जो सोल है, भगवान ने उसको एक यूएसपी दे के उतारा है, इसलिए तो वो इंसान बना। अगर इंसान बना तो उस सोल में उसकी यूएसपी होगी। उस यूएसपी को उस बच्चे को पहचानना जरूरी है, तब तो उसको अपने ऊपर बिलीफ आएगा। हम उसका बिलीफ तोड़ देते हैं 18 साल में कि तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं आता। तो एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू बी द रामू ऑफ द होम एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द लाइफ गोज ऑन। एंड परफेक्टली सेड बाय हिम, लाइक जो पेरेंट्स हैं इसमें जिम्मेदार कैसे हैं, इवन हम एजुकेटर्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। एक ज़माने में अभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको नीट क्लियर करना है तो ये एक नेचुरल सी बात है, 11-12 जो है वो डमी में करते हैं,
ठीक है, उनको उसका कोई इम्पोर्टेंट, अब उसका जस्ट उल्टा सिनेरियो आ रहा है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है ना, ही इज़ नॉट एट ऑल सीरियस इन कॉलेज, क्योंकि उसने स्टोरी सुन रखी है उन एंटरप्रेन्योर्स की जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उनके जो कहने मतलब आइडल्स हैं वो ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करी है उन्होंने, वो XYZ MBA टाइप के लोग हैं, राइट। तो हमको ये देखना है कि हम उनको मार्क्स के लिए नहीं, समझदार बनाने के लिए डेवलप करें। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, एंड स्पेशली टीचर्स और स्कूल्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए इनिशियल स्टेज से। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली, जैसे सर ने बोला ना, ऊपर वाले ने उनके अंदर वो चिप डाल के भेजा है, बहुत कुछ है उनके अंदर। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, MSB स्कूल है, वो बोरा समाज का स्कूल है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने गया, तो वहाँ की टीचर, प्रिंसिपल ने मेरे को बोला कि यू जस्ट एनालाइज माई टीचर्स फर्स्ट एंड देन यू ट्रेन। तो एक मंथ मैंने उन टीचर्स को एनालाइज किया। तो एक क्लासरूम में मैं गया और वहाँ पे मैंने बच्चे मतलब वो मैडम पढ़ा रही थी, मैं सुन रहा था, तो एक स्टोरी सुना रही थी, शायद वो 4th या 5th स्टैंडर्ड की थी। वो स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक बंदा जो है भेड़ चराने के लिए जंगल जाता है, उसको मस्ती सूझती है, बोलता है भेड़िया आया, गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बोलते हैं, चौथे दिन एक्चुअल में आता है, तो एक्चुअल में आए ही नहीं कोई, क्योंकि उनको लगा उसने झूठ बोला। तो इसका उन्होंने मॉरल दिया, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जिंदगी में। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंजेक्टिंग दैट लाई इन देम थ्रू दिस स्टोरी। अब देखो, सेम दूसरे सेक्शन में मैं गया और मैंने बोला मैम वो स्टोरी सुनाओ बच्चों को, एंड प्लीज डोंट गिव एनी मॉरल, कोई भी मॉरल मत बताना, आस्क देम, जैसे सर ने बोला ना, let them think. Why? Our educators biggest, Why and how? हाँ, why and let them think. अगर हम उनको सोचने का मौका दे रहे हैं ना, इससे अच्छी चीज हम नहीं कर पा रहे। और जब मैंने उनको बोला कि तुम बताओ इसकी, तो एक बच्चे ने कुछ बोला, एक बैच बेंचर बैठा हुआ था, वो दिखने में अलग ही मस्तीखोर दिख रहा था, उसके बाल खड़े दिख रहे थे, वो खड़ा हुआ, उसने बोला इस स्टोरी से हमने एक चीज सीखा है कि एक ही बात बोलने से बार बार सच हो जाता है। नाउ कैन यू इमेजिन, वो बच्चे के अंदर सच्चाई भरी हुई है और हम उसको झूठ सिखा रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं अच्छा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो इनिशियली हम उसके अंदर बुराई डाल रहे हैं। हम क्यों नहीं बोलते उसको कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। आवर सिस्टम इज नॉट गाइडिंग देम व्हाट दे नीड टू डू, एंड दिस इज हाउ वी आर डेवलपिंग इंडिविजुअल्स। 90% टाइम यूज्ड टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स व्हाट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। यू वांट फेलियर्स, नो, बट यू थिंक इन योर बैक ऑफ योर माइंड फेलियर इज देयर। इंसल्ट nobody wants, बट इंसल्ट, इसीलिए तो वो लोग इनिशिएट नहीं करते, जैसे सर ने बोला कि व्हाई दे आर नॉट इनिशिएटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रादर देन इम्पोजिंग वी शुड इंस्पायर देम। मार्कशीट बेस्ड एजुकेशन ना हो, लर्निंग बेस्ड एजुकेशन हो। हम एज ए पेरेंट, यानी मैं भी एज ए पेरेंट और हमारे सारे पेरेंट्स जो हैं वो ये एम्फेसाइज करते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज, 80% लाया तो कुछ नहीं होता। मेरा बिलीव नहीं है। मैं प्लेसमेंट इंडस्ट्री में बैठा हूँ जी, 20 साल का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है कि टॉपर का प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि उसको डिमांड ड्राफ्ट भरते नहीं आता है, उसको इंदौर सिटी के बारे में नहीं मालूम, लाइफ स्किल्स उसको सिर्फ किताबें मालूम है। स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए बच्चों को, और स्ट्रीट स्मार्ट तभी बनेंगे जब वो किताबों से बाहर आएंगे। तो हमें इम्पोजिशन नहीं डालना है कि तुमको मार्क, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है, आप 60% मार्क्स भी लेके आते हो ना, इट्स फाइन। पॉइंट इज दैट जो तुम क्लासरूम में पढ़ रहे हो या तुम जो घर में सीख रहे हो, उसको लर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी बच्चा सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, और इसीलिए हम एक नॉलेज सोसाइटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और फिर वो हम डू एज डायरेक्टेड में हैं। तो हमें जैसा बताया जाता है हम वैसा कर लेते हैं। इसीलिए महिंद्रा 700 जो गाड़ी है वो 6 महीने डिले हो रही है, क्योंकि इंडिया में AI का इंजीनियर है ही नहीं। ट्रू। Understand this. एक कंसाइज में हम सबको बताइए, CSIT तो ऐसा लगता है मतलब दशकों तक सेफ चॉइस हो गई, खत्म हो गई। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स पे कनेक्ट करेगी, मैकेनिकल पे चलेगी, और सिविल उसको घर बना के देगा, इलेक्ट्रिकल उसको पावर देगा। और इन्हीं फील्ड्स के लिए why we are seeing a negative mindset? CS इज अ सर्विस बेस्ड ब्रांच, इट इज डू एज डायरेक्टेड। क्योंकि जब वो गाड़ियों का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको मैकेनिकल इंजीनियर बताएगा, जब वो मेडिकल का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको डॉक्टर बताएगा, जब वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकर बताएगा, जब वो एग्रीकल्चर का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बताएगा, जब वो लॉ का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको लॉयर बताएगा। तो उसका अस्तित्व तो मिटा ही दिया ना हमने। तो इसलिए वो बच्चों को सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि हमने बच्चों का अस्तित्व मिटा दिया अपने घर से।
हमको उनका आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसका आइडेंटिटी ही हम मार देते हैं। और ये एज ए टीचर, हम एज ए पेरेंट, हम सबको उसकी आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करवाना जरूरी है कि यस, यू कैन डू इट, एंड बिलीव मी, every soul born on this earth can do a miracle. Yes. Teachers has to be transformers rather than only teachers. They have to Mentors transform. and transformers, yes. Moving on to Archana ma'am. Ma'am, unfortunately we have been a patriarchal society for past few years. I wish it changes on very fast pace. जब women fraternity में फीमेल स्टूडेंट्स करियर डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ती हैं, तो क्या आपने फ्री थिंकिंग एटीट्यूड अब उनका बनना चालू हुआ है? आर दे रियली टेकिंग डिसीजंस ऑन देयर ओन इन टर्म्स ऑफ द वे वांट टू बिल्ड देयर करियर्स? सो आपका उस पर विजडम बताइए। श्योर, थैंक यू। आपका क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगी, बट चूंकि इतने सारे पॉइंट्स ये लोग लेके आए हैं, आई हैव बीन वर्किंग इनटू सेल्फ लर्निंग फॉर मेनी इयर्स। अमेजिंग। माय बोथ द चिल्ड्रंस आर अनस्कूल्ड, दे आर सेल्फ लर्नर्स। और सबसे पहले जो आज हम लोग यहाँ पे करियर का एक टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से करियर या लाइवलीहुड की बात जब बच्चा छोटा होता है तभी वी स्टार्ट आस्किंग देम व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। बट एक्चुअली आई हैव आस्क्ड, like I have interacted with many parents and many educators across the globe, and मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि have we asked them what do you want to create in this world? क्योंकि वहीं से क्रिएटिविटी शुरू होती है। जब हम लोग बात करते हैं कि what do you want to be, it is a noun, but when we say what do you want to create, it is verb, because we are asking them to create something. It is changing the reproductive imagination to creative imagination, because they are here, they are born to learn, as we already talked. We are talking about life skills. We are saying that we don't give our children a space to learn. Both the children are self-learners, and they have created their portfolio in such a way that they didn't need any degree. So we are sitting in the school EdTech platform. I wouldn't say much about the current schooling, but we all know where we are heading to. If we trust our children, we give them this environment to self-explore. Basically what we are talking about is shifting a paradigm mindset shift from learning from world. So right now in schools or any other places, we are having a third-hand knowledge. Someone has experienced something, it was their learning. They have written the book, it's a second hand, and then we are learning it from our mentors or teachers, that is a third hand learning. Why don't we give our children an environment where they go and explore themselves, you know? The school time is so much that they are not able to find any time to explore themselves. And उसके बाद में हम लोग बच्चों से expect करते हैं कि we मार्क्सवादी parents, मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स को, वी आर मार्क्सवादी बिकॉज वी ऑलवेज ओनली केयर अबाउट मार्क्स. We are not talking about characters, we are not talking about values, we are not talking about anything. They are born to learn, they are a soul on a journey. They have acquired so many things from previous births and they are coming to us. They are through us, but they are not for us. So, sorry, आपका question, I'll address that. I would also, but, sorry ma'am, sure. We're having a wonderful discussion. Organizers, I will request an extension of 5-7 minutes, please. क्योंकि अभी जो जिस माहौल में हम लोग हैं ना, हमारे इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे, बट वैल्यूज, हाउ डू वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हमको कोई नहीं सिखा रहा है. वर्ल्ड टू वर्ल्ड की तरफ जाने की जरूरत है, कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ जाने की जरूरत है. वी आर कंज्यूमिंग सो मेनी थिंग्स. आप देखिए जो चल रहा है, हमको मालूम है, मुझको बात करने की जरूरत नहीं है, बट कंजम्पशन टू क्रिएशन, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन ग्रोथ, राइट? We have to transition from growth to prosperity. इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी कैसे बनेगी? आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं जब बच्चा कॉलेज में आता है, करियर चॉइस, लाइवलीहुड, बट वाई कांट वी मेक इट अ लाइवलीहुड दैट वी आर अलाइव इन अवर लाइवलीहुड, राइट? वी नीड टू फाइंड अवर पैशन. देयर आर सो मेनी गिफ्ट्स वी ब्रॉट फ्रॉम प्रीवियस बर्थ्स एंड फ्रॉम द यूनिवर्स. वाई डोंट वी क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे उनको बच्चों को ये मिले? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि
खुदा जाने हम कहाँ जा रहे हैं, जिए तन से मन से मरे जा रहे हैं. एंड यू नो, तो आई थिंक नेक्स्ट राउंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट. बट आपका जो क्वेश्चन था कि आई बीन, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT बॉम्बे. आई वॉज अ सिंगल गर्ल इन बॉयज ऑफ 80. तो That is still a hope to mechanical engineers. So I think we are transitioning into a phase जहाँ पे women we are, but मुझको लगता है हमको empowerment की ज़रूरत नहीं. We are already creators. Only thing is we need to एक्सप्लोर कि भगवान ने हम में इतना सारा विश्वास रख के जो भगवान की कैपेबिलिटी क्रिएशन की वो हमको ही क्यों दी है. वाई कांट वी वर्क विथ आवर जनरेशंस, आवर यंगस्टर्स, कि उनमें वैल्यूज़ आए, उनमें मॉरलिटी आए. क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी. एक इंटरव्यू एंड रियल लाइफ स्टोरी है कि एक बंदा एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, बीच में देखा उसने एक एक्सीडेंट हुआ था, कोई बंदा हर्ट हो रहा था. तो ही टुक अ टाइम जहाँ पे भी उसको इन्फॉर्म करके भिजवाना था. देन ही एंटर्स द कैंपस. वहाँ पे नल, बगीचे में पानी दे रहे होंगे तो नल चालू हैं. देन ही एंटर्स द हॉल. वहाँ पे सारी लाइटें वगैरह खुली हुई है. वो सारी चीज़ें ध्यान रख के चारों तरफ ऑब्जर्व करके ही इज़ डूइंग दैट. ही इज़ नॉट थिंकिंग कि मेरा इंटरव्यू का टाइम हो गया, क्या होगा, बिकॉज ही इज़ सो कॉन्शियस. सो when he enters the room, उसको लगता है अभी तो सब चले गए होंगे, I lost the chance today. And then he enters the room and he sees the person who was there, CEO or whoever, managing director. He says, you are in, we have sent everyone, because this was the test that who as a person you are. Because all the skills you can learn on the fly. मैं मैकेनिकल इंजीनियर, I was in IT, I was heading Oracle US as a product strategy director. Wow. But 2013 I came back. Last 10 years through ASMACOM we have been working into life skills, self exploration, working with many parents. और जब पेरेंट्स आते हैं कि मैम आप बोलती हैं कि स्कूल में और कॉलेजेस में चल रहा है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट जब बड़े होंगे तो करेंगे क्या फॉर देयर लाइवलीहुड. आई ऑलवेज टेल देम कि फोर्ब्स का ये प्रिडिक्शन है. इनिशियली इट वाज सेइंग बाय 2050 humanity will starve to death because we'll not have any food to eat. Food security is the biggest, and water. तो आई ऑलवेज टेल कि जितना पैसा आप सारी स्कूल्स में दे रहे हो ना, उतना के लिए एक ज़मीन खरीद के टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू ग्रो योर ओन फूड एंड योर चिल्ड्रंस फ्यूचर इज सिक्योर्ड. So sorry about using this platform to convey this. I am not against the schools, but through NEP, I think they have done wonderful job, and we all are together. I think we are going to work how we can create that system where we are not thinking only about career, but we are thinking about conscious life instead of career. So that is a paradigm shift we need. Sorry, I'm not sure I answered your woman or whatever question, but I think that was the thing I wanted to. I think a very different yet very relevant and a little bit of spirituality, philosophical angle you have added to the discussion. We all appreciate that. I'll be moving on to Divyadat sir. I think Divyadat sir एक बहुत यंग, वाइब्रेंट, न्यू कमिंग अप यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं. एजुकेशनिस्ट हिमसेल्फ नासा यूनिवर्सिटी से हैं. सर आप बताइए, जो नए बच्चे आ रहे हैं, यू फेसिंग द यंगेस्ट माइंड्स, दे कम इन फर्स्ट ईयर. आप किस तरह के बच्चे चाहेंगे कि वो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं? क्या स्किल सेट चाहते हैं कि उनमें रेडी हो, एंड देन दे शुड सी देमसेल्व्स रेडी फॉर द हायर एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन? सो आई डोंट थिंक सो 17 या 18 तक हमारे कंट्री में इतना एक्सपोजर दिया जाता है कि बच्चे से बहुत ज़्यादा चॉइसेस पूछी जाए. एक चॉइस पूछी जा सकती है, आप स्किल असेसमेंट आजकल हो जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट. सो उससे 2-3 एरियाज पता चलते हैं. यूजुअली सारे बच्चों का जो डिसीजन मेकिंग होता है, आई एम श्योर ऑल एजुकेशनिस्ट विल एग्री विथ मी, देयर डिसीजन इज़ नॉट गवर्न्ड बाय देयर इंस्टिंक्ट्स और देयर स्किल्स. देयर डिसीजन मोस्टली इज़ गवर्न्ड बाय व्हाट दे हैव हर्ड और अंडरस्टूड. कई बार रिबेल एटीट्यूड के कारण कोई कोर्स चूज़ हो जाता है कि सब मुझे बोल रहे थे मेडिकल में जाओ, पर मुझे तो लगा कि मैं लॉ में जाऊँगा. तो मुझे लगता है मैं लॉ के लिए अच्छा हूँ. तो आप लॉ के लिए क्यों अच्छे हो? बस मैंने कहीं किसी के साथ बहस करी तो उन्होंने बोला तुम तो बहुत अच्छी बहस करते हो, एक काम करो लॉ में चले जाओ. तो मुझे लगा कि मेरा यही करियर होना चाहिए. एक छोटे से इंस्टेंस पे उसने चूज़ कर लिया.
कई बार बच्चे भी करते हैं ना, पापा ने डांट दिया तो आज गंदे पापा हो गए आप यकीन नहीं करोगे बहुत बड़े होने तक ये डिसीजन चलता है। तो 20% क्राउड का माइंडसेट इसके कारण बनता है। सो एलिमिनेशन से करियर चॉइस होती है। Oh, yeah. देर 20% माइंड लोगों का क्लियर होता है क्योंकि उन्हें अपनी स्किल्स एक्सप्लोर करी रहती है। दे हैव टॉप्ड इन देयर एकेडमिक्स, दे हैव टॉप्ड इन मैथमेटिक्स, दे हैव टॉप्ड इन फिजिक्स। तो उनको लगता है मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ तो फिजिक्स ओरिएंटेड कोर्सेज में जाना चाहिए, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मैथ्स ओरिएंटेड कोर्सेज में जाना चाहिए, या मैं हिस्ट्री अच्छे से याद कर लेता हूँ तो BA कर लेना चाहिए, और मैंने सिविक्स अच्छे से कर लिया तो BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। सो स्किल ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग होता है। जो ये बीच का 20 उधर चला गया 20 इधर चले गए, बीच का 60% है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक टर्मिनोलॉजी होती है इलेक्शंस के दौरान, स्विंग स्टेट्स। तो ये सब स्विंग वोटर्स हैं, स्विंग स्टेट्स हैं। Yeah, thank you. Yeah. सो ये 60% को किसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए रीजनिंग के साथ साथ इनकी काउंसलिंग करने वाले या इनसे इंटरेक्ट करने वालों में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। अब Wonderful नाउ वी point. आर सेइंग दैट दे डोंट हैव लाइफ स्किल्स। आप आई एम श्योर जिस कंफर्ट से सर ऊबर बुक करेंगे उससे बहुत फास्ट स्पीड से एक 15 साल का बच्चा बुक करके सामने ले आएगा। ये भी लाइफ स्किल है। इफ़ यू गेट स्टक एट 2 o'clock, हम पहले क्या मानते थे कि रिश्ते बनाओ, 2 बजे रात में फंसोगे तो क्या करोगे। अब आप रात को 2 बजे में आपको भूख लग रही है, खाना आ जाएगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कार आ जाएगी और आपको किसी से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइफ स्किल्स के मायने बहुत बदल चुके हैं। हमको लगता था कम्युनिकेशन लाइफ स्किल है, आज भी है, बट वो कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करा जा सकता है उसके मल्टीपल टूल्स हैं। आपको बात कैसे करना है यूट्यूब पे लोग बता देंगे, आपको इंटरेक्ट कैसे करना है, एटीट्यूड थ्रो कैसे करना है इंडिविजुअलों के सामने, ये तक अवेलेबल है। आपको लेटर लिखना है, चैट GPT अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, हिब्रू, लैटिन, किसी में भी लिख लिए एंड दे ड्राफ्ट ब्यूटिफुली। आई एग्री विथ सर कि आप हाँ पर ड्राफ्ट करने के बाद पढ़ ज़रूर लीजिए ये गलत हो जाता है। सो सब चीज़ें अवेलेबल है, पर जो इनसे इंटरेक्ट करते हैं उनको भी ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि उनका एक्सपोजर एक्सेप्शनल है। ये गलत नहीं है। इस जनरेशन को से डिसीजन मेकिंग नहीं होती, कैसे होगी भाई। आई एम श्योर जब सर आर्मी में गए होंगे या जब सर ने करना शुरू किया होगा, जब टेलीविज़न जब आया होगा तो तब 1 या 2 चैनल आते थे। True. आजकल टेलीविज़न पे 1000 चैनल्स हैं, OTT पे 2000 चैनल्स हैं। सो डेविड श्वार्ट्ज की एक बुक है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। सो जब पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस होता है तो डिसीजन मेकिंग में पैरालिसिस होता ही होता है। आप कई बार टीवी लेने जाते हो, 200 टीवी आपको सामने दिखते हैं, आप 10 मिनट के लिए तो वेट करते हो कि कौन सा लूँ। दिस इज पैरालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। उसमें उनकी गलती कहाँ है। आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, 1000 चीज़ें लिखी हुई है चूज़ करने के लिए, पर आप सिमिलरली आप अगर चाय की दुकान पे जाए हो तो कोई चॉइस है क्या, कौन सी पियोगे आप चाय ही पियोगे, देयर इज़ नो चॉइस अवेलेबल। सो आप अभी की जनरेशन के पास पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम है। दे नीड समवन की जो उनको समझ सके और उनको समझ के गाइड कर सके। और गलतियों को भी हमने फेलियर को इतना हवा बना रखा है, मतलब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो और उसमें भी फेल हो जाते हो तो 1 साल की सज़ा होती है कानून के हिसाब से। सो वहाँ पे भी फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है। वी हैव टू नॉर्मलाइज फेलियर कि हाँ हो गया फेल, क्या हो गया, पहले मैंने ये करियर चूज करा नहीं सक्सेसफुल हो, इसमें चला गया। वी हैव टू नॉर्मलाइज ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक फेलियर, लाइक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लो, एक्सपोजर दिया नहीं और आप डिसीजन थोपे जा रहे हो तो फिर होना क्या है, डिसीजन गलत ही लोगे और फिर गलत में फिर आपको डांटना लगे। फिर एक सॉरी आई जस्ट एंड विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक ग्रैंडफादर आए हमारे साथ अपनी ग्रैंड डॉटर की शिकायत करते हुए कि ये इनको पैसे की वैल्यू नहीं है, इनके लिए तो क्या क्या नहीं कर रखा है, हमारे टाइम तो 4-4 किलोमीटर हम पैदल जाते थे 2-2 रुपये बचाने के लिए। बहुत देर तक बोलते बोलते मैंने एक लेवल के बाद देखा कि उनकी ग्रैंड डॉटर मोबाइल चलाने लग गई। प्रॉबेबली शी हैज़ बिन देयर डन दैट अ नंबर ऑफ टाइम्स। उसको पता है कि बार बार ये शुरू हो जाएंगे और मुझे सुनना पड़ेगा। ग्रैंडफादर की भी गलती नहीं है क्योंकि उनके शायद से फादर ने इसी तरह से इंटरेक्ट करा है उनके साथ। मेरी प्रोफेसर ने मेरे को मैसेज करा कि सर बच्ची को बाहर कर भेज दीजिए या मैं लेके चले जाती हूँ, आप अकेले में बात करिए। माय प्रोफेसर अंडरस्टूड कि बेटी को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, शायद दादाजी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही वो बाहर गई मैंने उनको बोला कि आप जो बातें बोल रहे थे, किसी दिन अगर बेटी ने पलट के बोल दिया कि नहीं चाहिए मुझे कार, मैं तो पैदल जाऊँगी, 8 बजे मेरी कोचिंग खत्म होती है, मैं पैदल घर आती हूँ, आप अलाउ करोगे?
उसने कार मांगी नहीं है, आपने दी है, क्योंकि आपको लोगों को बोलना है कि मेरी बेटी पैदल नहीं आएगी। आप 2 रुपए बचाते थे, 4 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि तब मनी वॉज अ स्केर्स रिसोर्स, टाइम वॉज एन अबंडेंस, तो आप समय दे सकते थे पैसा बचाने के लिए। अब उल्टा है, वो बेटी पहले स्कूल जाती है, फिर एक क्लास जाती है, फिर आपको उसको कुकिंग क्लास भी भेजना है, फिर आप उसको कोचिंग भी भेजना है, क्योंकि आपको नहीं पता उसको क्या रोल करना पड़े, उसको वाइफ भी बनना पड़ सकता है, उसको मैनेजर भी बनना पड़ सकता है, तो आप सब के लिए तैयार कर रहे हो। एंड अब उसकी एज में वो पैसा देती है टाइम बचाने के लिए, आपकी कंसेंट से, सो उसके लिए उसको कैसे ब्लेम करा जा सकता है? ये तो वही बात हो गई कि ऑर्गेनाइजर्स ने हमको ब्लेम करा कि तो ये आके और ऊपर बैठ गए, भाई दे हैव इनवाइटेड अस, सो लड़की की गलती नहीं है। ये बात हमने उनको बोली, थोड़ा बहुत बात समझ में आई, पर वो बेटी ने आके थैंक यू बोला, बोले सर मैं ये 2-3 बार डिस्कशन कर चुकी हूँ, मुझे डांट दिया जाता है। जैसे अतुल सर ने बोला कि वाई और रीजनिंग की तो स्कोप ही नहीं है, बट अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। यंग पेरेंट्स, मेरी बेटी जिस क्लास में पढ़ती है उसमें बच्चे 70 का एक कोई टेस्ट था जिसमें से एक बच्चे को, किसी को 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। मैंने किसी भी पेरेंट को रिजल्ट डे पे डांटते हुए नहीं देखा अपने बच्चे को। एवरीवन वाज मोटिवेटिंग, फ्यू ऑफ देम वर अंडरस्टूड कि यार हमीद 4 दिन हॉलीडे पे लेके गए थे सर, कैसे नंबर लेके आ पाएगा, वी अंडरस्टैंड। सो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स समझ नहीं रहे, दे आर अंडरस्टैंडिंग, बट इट्स अ लर्निंग कर्व। सोसाइटी इज चेंजिंग वेरी क्विकली, आवर माइंडसेट्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली, और अभी के जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को भी समझना है और उनके पेरेंट्स को भी समझना है। वी स्टिल लिव इन अ सोसाइटी वेयर फादर का हाथ होना चाहिए, भले ही सारे काम आप कर रहे हो। शायद आने वाली जनरेशन ना समझे, क्योंकि हम अप्रूवल जनरेशन थे, वो रीजन जनरेशन है। आई गेस आई मस्ट Very valid point, sir. Very enlightening. Coming to Mohit sir, education is the extraordinary and entrepreneur. Nothing on that. I think the career discussion की बात हो रही है. One of the institutions out of many, one of that you lead is it relates to design. और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो अभी कुछ 4-5 साल से हम सुन रहे हैं कि हमारे बेटे ने डिज़ाइन स्कूल में एडमिशन लिया है और डिज़ाइन की तरफ हाउ डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये शायद अभी अभी समझ में आने लगा है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में 20-25-30 साल पहले समझ में आ गया था कि हाउ डिज़ाइन इज़ गोइंग टू टेक ओवर। तो सर, डिज़ाइन में करियर बनाने के लिए बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो फैशन डिज़ाइन हो या इन डिज़ाइन जनरल? Well, thank you, Prashant ji. And let me just start answering this question in a different manner. Do you know what is the pattern of our Indian culture and society and values and heritage? So if you go back to ages old system of education, the students were sent to Gurukul, right? And they were sent to the schools. वहाँ पे उनके gurus होते थे. No teachers. I'm never going to say the teachers, because for me the teacher word is bifurcated. Teach and earn is a teacher. And gurus, shikshak, these are the people who actually mentor. The thing that our earlier panelists were saying, that today the role of a good person is to mentor the life of a student. So these students, when they used to go down to these gurukuls, what they used to have, their potentials were assessed by the gurus. उनके जो होते थे ना, वो लोग उनका असेस करते थे कि अच्छा तुम ये काम अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है। वो वेरियस टेस्ट होते थे उनके, और वो असेसमेंट होते थे, जिसका अभी विदित ने कहा साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है। एंड आई से साइकोमेट्रिक टेस्ट आर दोज टेस्ट विच कैन इजीली बी डिफाइड। अगर हमारा माइंडसेट कुछ और हो, उस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड इट इज़ ऑल डिफाइबल सिचुएशंस। पोटेंशियल असेस होता था एक्चुअल कैलिबर देख के कि वो क्या कर सकता है। उस जमाने में लिमिटेड चॉइसेस थी, आइदर यू कुड बिकम सैनिक, आप सैनिक बन जाओ, एग्रीकल्चरिस्ट बन जाओ, आप कुछ शॉप कर सकते थे, लिमिटेड। सो दीज रिसोर्सेज वर देयर, पोटेंशियल असेसमेंट होता था, एंड अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट्स वर गाइडेड फॉर दोज थिंग्स। उसको ज़रूरी नहीं होता था कि ये XYZ सब्जेक्ट पढ़ना है तो ही वो कर जाएगा। सारे चीज़ें समझा और उसको फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई, तैयार किया गया, और फिर उस फील्ड में सोसाइटी में पुटअप किया गया। द एंटायर सिस्टम चेंज्ड व्हेन वी गेम एज अ कॉलोनी। ब्रिटिश कॉलोनीज सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, हमने थिएटर स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज जो अतुल सर ने कहा, हमको नौकरी पेशा लोग बनाने थे, हमारे सिस्टम ने सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को बनाया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडियंस से सिर्फ
नौकरी करवानी थी, उनको बिजनेस नहीं करवाना था। तो उन्होंने बोला एक के पीछे एक बैठो, सिर्फ एक दूसरे की पीठ देखोगे, चेहरा नहीं देखोगे, और जो टीचर कहेगा उसको सिर्फ लिखोगे। जो ऑफिस कॉर्पोरेट्स होते हैं उसमें एक के पीछे एक बैठा दिया जाता है क्यूबिकल्स के अंदर, आप देखते हो। द माइंडसेट वाज क्रिएटेड लाइक दैट यू हैव टू बी अ जॉब सीकर, नॉट जॉब गिवर। पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही पलट दिया ना। एनईपी आ रहा है, नया एजुकेशन सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। यस, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द एंटायर सिस्टम ऑफ education and the mindset of students from becoming a job seeker to job giver. Entrepreneurship skills अब आएंगी, चीजें उसमें आएंगी। Things have to be changed. Technology will play a lot of, I would say, role in doing all those things. Chat GPT बुरा नहीं है, बैन कर दिया जिन्होंने बैन किया, मैं उनकी सोच पे हंसी आती है, क्योंकि चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं, सीखने के लिए होती है, सही तरीके से। गलत तरीके से तो कोई भी कुछ कर सकता है। चाकू बनाया था कुछ अच्छे काम करने के लिए, मर्डर करने लगा कोई तो उसके लिए चाकू को बैन नहीं किया जा सकता, चाकू तो फिर भी यूज़ होता है। थिंक ऑन दोज लाइन्स। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि अब आपने जो हमसे पूछा कि चीज़ें कैसे होती हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड में कैसे लाए, बच्चों को कैसे तैयार किया जाए। तैयार नहीं करना होता है, हमें उस बच्चे का पोटेंशियल असेस करना होता है कि क्या उसके अंदर डिजाइनिंग एबिलिटी है। इफ आई वांट टू बी अ गुड डिजाइनर, एम आई हैविंग अ गुड इमेजिनेटिव पावर? मेरा इमेजिनेशन पावर क्या है? कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स? कैन आई हैव एन आइडिएटेशन, जो सर ने बोला था, क्या मेरे में आइडियाज क्रिएट करने के तरीका है? कलर वही है ब्लैक, लेकिन उस ब्लैक कलर से मैं ड्रेस कैसे बना सकता हूं, या वो ब्लैक कलर को इंटीरियर में कैसे यूज कर सकता हूं, या वो ब्लैक कलर के स्पॉट को ज्वेलरी में कैसे यूज कर सकता हूं, ये क्या मेरे अंदर कैपेसिटी है? Now this is something, a potential of an individual student which will vary from person to person. So before entering into the field of designing, the most important thing is we need to assess the potential, and potential need to be assessed not on basis of theoretical test, on some giving practical assessment to the student in the schools itself. This is a job, moral responsibility of schools. I am a school owner, I am a college owner, I am having a vocational training institutions, so I understand Mary, and yes, thank you. I have a university also. I am a director of Renaissance University also. So as a responsible school प्रिंसिपल एंड ओनर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने स्कूल में हर बच्चे का असेसमेंट करूं कि उसका पोटेंशियल क्या, फिर मैं उसको गाइड करूं कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे स्कूल में पढ़ाने वाले हर वो व्यक्ति की है जो बच्चों से रोज इंटरैक्ट करता है। तो अगर हम आज की डेट में शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में हमें वो काम करना पड़ेगा कि वी असेस द स्टूडेंट पोटेंशियल एंड देन गाइड। तो मेंटरशिप करें, यहां मेंटरिंग होगी, यहां हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे, तो शायद हम बच्चे को गाइड कर पाएंगे कि वो फैशन डिजाइनर बनेगा, कि इंटीरियर डिजाइनर बनेगा, कि ज्वेलरी डिजाइनर बनेगा, कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनेगा, किसी भी तरीके की डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू हैव अ गुड इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी। आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अदरवाइज चीज तो सबके लिए वही है। हम सब यहां जो बैठे हैं, मेल्स की बात करूं, शर्ट ही पहन के बैठते हैं। फीमेल्स के पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं पहनने की, मेल्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो डिजाइनर होता है ना, वो शर्ट को भी इस तरह से डिजाइन करता है कि हर एक की शर्ट अलग अलग नजर आती है। नाउ दैट इज क्रिएटिविटी। एक कहावत है, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल you will be successful. I say sorry, you will never be successful, because वो footsteps जहां रुक जाएंगे आप भी वहीं रुक जाएंगे। मजा तो इसमें है कि you create your own footsteps to be a successful, then you will be a real successful people, because you will be doing things differently from others what you have been following. आपको differently करना है। This is what I would say to the students who want to enter in the field of creativity and imagination. Thank you. Thank you. What an enlightening session, isn't it, guys? I think please give a big round of applause for our esteemed panelists. And I'll just end up
by adding my 2 cents to the entire discussion, out of my own experience of last 18, 19 super meaningful and fulfilling years to all the parents and students, either for UG, either for PG, either for PhD, postdoc, a 4-month certificate, do consider study abroad. Thank you so much. Thank you so much. The discussion was indeed wonderful. It was so captivating that even the timekeeper forgot to keep the time and play the buzzer. So, a round of applause from all of us for the panel. We open forum for questions, only few questions because we are only running one session back. So please, if any questions, crisp and short, only sticking to the questions. If we have, then we are open. From placements to any other direction. And part 2 is how as students you can use various skills and tools like ChatGPT. So part 1 of your question is how is the education moving? We are moving at pace with what is happening in the country. And yes, there is a strong cognizance taken of what is going around in the world. But at the end of the day, education, people who are providing education, they have to adhere to 2 things. First, what the government tells us to do, and second, what the students and the parents want us to deliver. So it is not that we are pushing towards placements. They want those jobs. That's why we are pushing towards them. अगर हम प्लेसमेंट सेल डिजाइन करें और अतुल सर के पास एक भी बच्चा नौकरी लेने नहीं आए, तो he would push them towards entrepreneurship or somewhere else. We have a lot of creative inputs. As teachers, I can say on behalf of the whole panel, we would want to do a lot of things. But I'll give you a simple data. I went to Gurgaon in a particular college के E-Cell के मैं वही पैनल डिस्कशन में गया, and there was someone कि यार entrepreneurship नहीं होती, कोई करता नहीं, कोई कराता नहीं. You know, vice chancellor of that particular university got up and he gave a number कि हमने 1000 students में Google form float करा था कि in which direction do you want your college to train you. 1000 में से around 800 plus students ने बोला था कि placements को और बेहतर करा जाए. There were only 34 students who talked about entrepreneurship, and around 100 students talked about vocational skills. So at the end of the day, yes, if the crowd wants something else, we will deliver that. And every institution in Indore, I can guarantee that all the institutions are working in every direction, hoping that one day there will be a paradigm shift. But yes, there are jobs available, there are competitive exams available, and students are finding those options more convenient. There is nothing wrong in doing a 10 to 5 job. बशर्ते आपको पसंद हो वो करना. जॉब गलत नहीं होता. सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन के या हीरो बनोगे ऐसा नहीं है. टीचर भी हीरो है, ड्राइवर भी हीरो है, सब हीरो हैं. आप अपने काम को कितनी शिद्दत से करते हो वो इंपॉर्टेंट है. पार्ट 2 ऑफ योर क्वेश्चन की चैट जीपीटी को यूज कैसे करा जाए, आप दिल खोल के यूज करिए, पर हर बार एक लेटर ड्राफ्ट करने के बाद एक रीडिंग करी जाती है और उसे इंप्रूव करा जाता है. वो इस लेटर के साथ भी करिए. एक रीड करके पुट योर वोकैबुलरी इनटू इट, पुट योर सोल इनटू दैट लेटर. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी करके भेज दिया है. अगर वो स्टूडेंट ने पढ़ा होता तो थॉमस सर को अच्छा लगता और वो अप्रिशिएट करते यूज करना. प्रॉब्लम ये है कि उसने चैट जीपीटी, उसने लेटर नहीं लिखा, चैट जीपीटी का लेटर वहां पे लाके रख दिया. दैट इज द प्रॉब्लम. इफ यू यूज दैट टूल एंड पुट योर सोल इनटू दैट, इट्स अ ग्रेट टूल. चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, इन टूल्स को यूज करके दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. I have realized I am able to save at least half an hour to 1 hour of my working day that I can spend with my family, with my friends, with my people who work with me. I can utilize that time in other areas. So yes, these tools are excellent. Using them totally depends on you, but yes, अपना input थोड़ा होना चाहिए. भले ही language थोड़ी सी vocabulary में एक notch नीचे आ जाए, doesn't matter. Just a one follow-up thing. I know we are running short on time. Like you said, I too agree that, you know, even having the job is not bad, right? It's very fine to do job or either pick your own business. I'm very much fine with it. My question is actually around is that why can't we prepare a student to find the job for themselves instead of trying to create a placement cell I will answer inside a institution, right? So I will answer it. See, if you talk about Indore, Indore is going to rock in the country in next 5 years. Okay, I run 3 entrepreneurship groups in Indore, which is more than 800 startups. And you won't believe,
I founded this in 2013 with 3 startups as a student, and it has been rose out to more than 1,000 now. What I could see in last 6 months or a year, I could find a 10th class student in that group, I can find 11th class student in that group, I can find a first year student who have a turnover of 2 CR with a company formed a year back. So things are changing. And when you talk about training and placement, it has been erased. Now the offices are called career management services, career development cell. When I lead a career development cell which has higher education with him as an expert, entrepreneurship as me as an expert, and for placements there is a separate training team. So now students have a different ideation. If you go back and see Ministry of Education how they are working, so by 2019 they had initiated a policy called NISP, National Internship and Startup Policy. Then there is a National Innovation Policy. Now there is a letter had been sent which I had shared with Mudit. Letter has been sent to all the schools principals to form up a school innovation council. Now when School Innovation Council comes, there is a guideline of self-driven and not self-driven and directed-driven activities to be done. Automatically everything will change. Just see for 5 years, India is going to evolve as most ideated and innovative country of the world. Our children are one of the best. It has been proven. Only thing is that ideation is losing, where government and education system both are working together. Now your question, why they do not find on their own job? So you won't believe, my student who had got placed in Google or Flutter had not taken a job and joined a startup to done a job. So students have 7 offers in hand. It's all about skills, talent and your capabilities and potential what he had spoken about. If you have potential, there are students who have 10 jobs and they had not joined their jobs. They had joined their family business selling oil. So it all depends. So we are the facilitators, we are instruments. Thank you so much. It was such a wonderful session. A big round of applause once again. Can I please. end it with one line and just add it to one line because I'm seeing some students sitting. Okay. I'll end it. This is a career counseling session, career selection. एक अपने बच्चों में देखता है True. तो करियर सिलेक्शन इसलिए सही नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बच्चों अगर करियर सिलेक्शन की बात शुरू करते हैं ना तो वो आप लोग 10th के बाद सोचते हो कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ नॉट करियर सिलेक्शन। आप अपने आप को ज़िंदगी में 7 साल बाद, 8 साल बाद किस पोजीशन पे देखना चाहते हो, वो आपका करियर सिलेक्शन होता है। और वहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन जब करेंगे तो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वहाँ से आपकी पाथ शुरू होती है। तो 8 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना है, वो आपका करियर होता है। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट बात, व्हाट्स योर नेम? हाँ, Gaurav, if I ask you, like, work for a company like me for 3 months for office there, then there is no need to, develop. Our biggest challenge is that people are more money oriented. Another day I was with that DPS Rao, and I was taking a session for 11th and 12th student with UA, right? So we are actually giving opportunities for internship. So Rohit asked that question that what do you mean by this internship? That guy said, internship ऐसी चीज है जिसमें काम ज्यादा लिया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। तो पैसों के लिए लोग अगर अभी इनिशियली काम करेंगे ना, यू वोंट बी स्किल्ड, राइट? स्किल के लिए काम करो, राइट? जैसे 3 Idiots का बेस्ट डायलॉग है, अपने एक्सीलेंस डेवलप करोगे, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगी। Thank you. All right, so it's time for felicitating this super amazing panel. So may I request Mr. Shantanu Dhanuka from eSchool app to please felicitate Mr. Prashant Hemnani, our charming moderator. May I request Mr. Fanindra Jain to please come on the stage and felicitate. I would request Mr. Rahul Jain to please felicitate Mr. Mohit Yadav. Please.
May I request Mr. Suman Singh Thakur, Secretary, MP Board Private Schools Association, to felicitate Professor P.K. Biswas. I would request Ms. Taha Khan, Principal Eurasia School, to please felicitate Ms. Archana Gehlot. Suman sir and Shantanu ji, please stay on the stage. We are going to have a group picture. May I request Ms. Varsha Soni, Principal Excellent Academy, to please felicitate Divyaditya Kothari ji. May I request Mr. Bhupendra Purve, Director, Elite Public School, to please felicitate Captain Jason Thomas, President D-Fly International. Ma'am, please stay around, please. So let's all rise up and get collected here for a group picture. Shantanu ji and please sir, please come.